So now question number 66. So 66 question is that give reasons for the following. First is compounds of transition elements are generally colored. So why they are colored? Color of the transition elements is due to DD transition, and they have most of the transition elements have partially filled d orbital. Therefore, electron can jump from one level to another, that is T2G and EG level, that I have explained already. T2G and EG. So electron can jump from T2G to EG in the visible region. So light is absorbed and another light is emitted, due to which compounds of transition elements seem to be colored. That's it. Okay. Now next part is why MnO is basic and Mn2O7 is acidic. So when you go from MnO to Mn2O3, MnO2, Mn2O5, Mn2O7, oxidation number is going like this. It is increasing. So as it is increasing, and so is the oxidation, so is the acidic character. As the oxidation number of the metal increases, acidic character increases. Okay. See, MnO is basic, Mn2O7 is acidic. क्यों? क्योंकि basic nature जो है it decreases as the oxidation state or number of oxygen atoms increases. So MnO, it is +2. By mistake it is +4. MnO में +2 ऑक्सीडेशन नंबर है मैग्नीज का, and Mn2O7 में कितना है +7, and that's why acidic character increases. Oxidation number increases and basic character decreases and acidic character increases. This is the reason. Next is magnetic moment of a divalent ion in aqueous medium if its atomic number is 26. So atomic number 26 is of iron, and iron it is 3d6 and 4s2. So divalent ion, so it is 3d6 means it is like this. Okay, so number of unpaired electron is 4 because it is aqueous solution. So water is a weak ligand, that's why no pairing takes place. They are just like in this state, and n is 4, so magnetic moment is square root of n into n plus 2 for magneton. So n is 4. N means number of unpaired electrons. So it is under root 24 means 4 point something, because if it is 25 then value comes out to be 5. So it is around about 4.9. Value is around about 4. Yes, beta. What is the value? (24). So it is 4.9. Next question. Complete the following chemical equation. बार बार किया है हमने ये बैलेंसिंग.
once again I am doing it. एक्चुअली 2 मार्क्स का ये बैलेंसिंग आएगा ही आएगा, जब भी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट आएगा तो ये बैलेंसिंग आपको 2 मार्क्स में आएगा ही, तो याद रखना ये, ठीक है। तो करो आप लोग भी साथ साथ। देखो क्या है हमारे पास, MnO4 नेगेटिव, और उसको किससे कर रहे हैं, C2O4 2 नेगेटिव, मींस MnO4 नेगेटिव से पहले क्या बनेगा, Mn2 प्लस, और add H2O to the side deficient of oxygen, और डबल नंबर ऑफ H प्लस आयन टू द अपोजिट साइड, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 5, एंड देन C2O4 2 negative, that will give CO2, 2 CO2 क्योंकि कार्बन 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से और ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से, तो ओवरऑल इक्वेशन क्या आ गई, 2 MnO4 नेगेटिव, 5 C2O4 2 negative, 16 H plus to give 2 Mn2 plus और 10 CO2 and 8 H2. तो this is the balanced chemical redox equation, ठीक है ना, ये होगी balanced equation। अब दूसरा पार्ट जो है Cr2O7 2 नेगेटिव, Fe2 प्लस और H प्लस, तो देखो Cr2O7 2 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में क्या बनाता है ये, Cr3 प्लस, ठीक है, Cr2O7 2 नेगेटिव क्या बनाता है, Cr3 प्लस। तो पहले क्रोमियम बैलेंस कर लो, क्रोमियम 2 है तो इधर भी 2 हो गए। अब आप क्या करो, add H2O, कितने H2O ऐड करेंगे, 7, क्योंकि 7 ऑक्सीजन इज ऑन द लेफ्ट साइड, तो 7 ऑक्सीजन ऐड कर दिए और डबल H प्लस आयन टू द अपोजिट साइड, 14 H प्लस। अब कितने 12 पॉजिटिव हो गए और इधर 6 पॉजिटिव, तो 6 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा है Fe2 प्लस, तो इट इज वेरी सिंपल, Fe2 प्लस विल गिव Fe3 प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन, सो इनटू क्या हो जाएगा 6, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा Cr2O7 2 नेगेटिव, 6 Fe2 प्लस, 14 H प्लस, 2 Cr3 प्लस, 6 Fe3 प्लस प्लस 7 H2O, तो ये हो गया बेटा ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग, अगेन केमिकल इक्वेशंस आर गिवन, तो इसको ओके पहले, हाँ ये बाकी क्वेश्चन भी है ना इसमें, मतलब देयर इज जनरल इंक्रीज इन डेंसिटी फ्रॉम एलिमेंट, डेंसिटी ऑफ एलिमेंट फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर, तो टाइटेनियम टू कॉपर क्या है कि साइज क्या होता है, डिक्रीज, और मास क्या होता है, इंक्रीज, एंड दैट्स व्हाई डेंसिटी इंक्रीजेस। इतना सा लिखना है कि एज वी गो फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर, साइज डिक्रीजेस, मास इंक्रीजेस एंड डेंसिटी increases, ठीक है। नेक्स्ट is there occurs much more frequent metal bonding in compounds of heavy transition elements, so metal bonding more frequent क्यों होती है, क्योंकि इनमें क्या होता है, loosely held electrons, loosely held unpaired
electrons and therefore they can participate in bonding much more easily. ठीक है, and that's why metal metal bonding is much more frequent. Next, members in the actinoid series exhibit large number of oxidation states than corresponding members in the lanthanoid series. क्या लिखोगे कि 5F 6D एंड 7S इन तीनों में जो एनर्जी डिफरेंस है that is very small, therefore all the electrons present in them can participate in bonding and that's why they exhibit a large number of oxidation states. अब ये क्वेश्चन देखो, लास्ट टाइम भी मैंने किया था, तब मैंने मीडियम एसिडिक कर दिया था. अब याद रखना कि ये जो है H2O की वजह से जो है ये मीडियम क्या हो जाता है, बेसिक. अगर एसिडिक होता तो H+ लिखा होता, ठीक है ना. तो अब मुझे बताओ कि बेसिक मीडियम में MnO4 जो है, MnO4 नेगेटिव पर मैग्नेट आयन इन बेसिक मीडियम क्या देता है, इट फॉर्म्स MnO2. तो अब बेसिक मीडियम में इसको बैलेंस करना है. तो बेसिक मीडियम में बैलेंस करते हैं तो क्या करते हैं, H2O कहां ऐड करते हैं, टू द साइड एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन. तो इस साइड एक्सेस है ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन एक्सेस में है ना, 4 थे और 2 थे, तो 2 वाटर ऐड कर दिए और डबल नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन टू द अपोजिट साइड. ओके, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, ये बेसिक मीडियम में इसकी बैलेंसिंग हो गई. और दूसरा पार्ट जो है वो है S2O3 2 नेगेटिव. सो याद रखना S2O3 2 नेगेटिव विल गिव SO4 2 नेगेटिव. अब पहले सल्फर बैलेंस कर लिए. जैसे हमने सल्फर बैलेंस किए, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड है 3, तो राइट साइड हो गए 8, तो 5H2 ऐड करेंगे और डबल नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन टू द अपोजिट साइड. ठीक है, तो टोटल 12 नेगेटिव हो गए लेफ्ट साइड, 4 नेगेटिव ऑन द राइट साइड. सो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. एक बार फिर बैलेंसिंग अच्छे से देख लो, सही है कि नहीं, बोलो. राइट है, तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड को 3 से, और फिर ऐड कर दो. ऐड कर दिए तो क्या बनेगा, 8 MnO4 नेगेटिव 3 S2O3 2 नेगेटिव. ठीक है, इधर 30 OH नेगेटिव है, उधर 34, तो 4 आएंगे इस साइड. और वाटर की बात करें तो 15 और इधर 16, तो 1 H2O to give 8 MnO2 6 SO4 2 negative and plus 2 OH negative. जस्ट चेक. तो नेगेटिव चार्ज अगर देखोगे तो 8 + 6 14 नेगेटिव, इस साइड 12 + 2 14 नेगेटिव, तो इट इज बैलेंस्ड. दूसरा पार्ट जो है वो है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस H2S. तो Cr2O7 2 नेगेटिव इट विल गिव Cr3+. क्रोमियम 1 है, लेफ्ट साइड 2 थे, राइट साइड 1 था, तो 2 कर दिए हमने. और 7 H2O डबल H+ आयन और
6 इलेक्ट्रॉन। वैसे H2S जो है वो क्या बनाता है, सल्फर। तो बैलेंस कर दो 2H प्लस और क्या आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आ जाएगा Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3H2S और 14H प्लस और इधर 6, तो 8H प्लस 2Cr3 प्लस 3 सल्फर और 7H2। तो ये ओवरऑल इक्वेशन हो जाएगी अपनी। 6 पॉजिटिव हुआ टोटल लेफ्ट साइड और राइट साइड भी 6 पॉजिटिव, 8 पॉजिटिव -2, दैट्स इट। नेक्स्ट है ग्रेजुअल डिक्रीज in size from element to element is greater among the actinoids than that among the lanthanoids। क्योंकि चाहे actinoid contraction हो या lanthanoid contraction हो, both are due to, बोलो, due to poor shielding or we can say imperfect shielding of f orbital electrons। ठीक है, it is due to poor shielding of f orbital electrons। ठीक है, अब 4f और 5f इनको कंपेयर करें तो shielding of 5f is poorer, shielding of 5f is poorer than that of 4f, and this is the reason that actinoid contraction is greater, because shielding is poorer in 5f than that of 4f. That's why actinoid contraction is more than that of lanthanoid contraction. Next, greatest number of oxidation states are exhibited by the members in the middle of a transition series। तो middle of the transition series में maximum क्यों होते हैं? Because in the middle there are maximum number of unpaired electrons, maximum number of unpaired electrons are present in the middle of the series, like in manganese। मैग्नीज जो है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए मैग्नीज कैन शो ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +7 +2 to +7। none of the other element of 3D series can show +7 oxidation state। next, with the same D configuration, D4, Cr2 plus is reducing agent, Mn3 plus is oxidizing agent। बेटा Cr2 plus its electronic configuration is 3D4, but when you form 3D Cr3 plus, it is 3D3, means it becomes T2G3, that is more stable। So from less stable Cr2 plus it form more stable Cr3 plus, and that's why Cr2 is a reducing agent। second is Mn3 plus। so Mn3 plus is also 3D4, but after gaining one electron it form more stable Mn2 plus, being exactly half filled, and this is the reason that Mn3 plus is an oxidizing agent and Cr2 plus is a reducing agent। Okay, next question।
वेट बेटा, सो बैलेंस करो इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है MnO4 नेगेटिव प्लस Fe2 प्लस प्लस H प्लस। तो बैलेंस करनी है इक्वेशन। तो अब देखो मीडियम है एसिडिक, तो आपको पता है इन एसिडिक मीडियम MnO4 नेगेटिव कैन फॉर्म Mn2 plus, and MnO4 negative is an oxidizing agent, so it oxidizes Fe2 plus to Fe3 plus। तो मैग्नीज तो एक एक ही है। नाउ ऐड H2O, कितने H2O ऐड करने पड़ेंगे? 4। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड 4 ऑक्सीजन है, राइट साइड नो ऑक्सीजन, सो 4 H2O, देन डबल नंबर ऑफ H प्लस आयन टू द अपोजिट साइड, और फिर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड हुए 7 पॉजिटिव, राइट साइड 2 पॉजिटिव, सो 5 इलेक्ट्रॉन टू बैलेंस द चार्ज, देन Fe2 प्लस टू Fe3 प्लस, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया बेटा 5 से। तो इक्वेशन बन जाएगी MnO4 नेगेटिव प्लस 5 Fe2 प्लस 8 H प्लस to give Mn2 plus plus 5 Fe3 plus plus 4 H2O। तो ये आ जाएगी अपनी बैलेंस्ड इक्वेशन। इसका ही सेकंड पार्ट है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव प्लस H प्लस, अगेन बैलेंस द इक्वेशन। क्वेश्चन होता है कंप्लीट द इक्वेशन, एंड यू शुड कंप्लीट इट बाय राइटिंग द प्रोडक्ट्स फॉर्म एज वेल एज बैलेंसिंग। तो आपको पता है Cr2O7 2 नेगेटिव विल गिव Cr3 प्लस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, और I negative is oxidized to I2. First of all, we balance the atoms other than hydrogen and oxygen. So chromium 2 on the left side, right side भी 2 कर देंगे, 7H2 ऐड कर दिए, और डबल H प्लस आयन टू द अपोजिट साइड। तो अब देखो लेफ्ट साइड हो गया 12 पॉजिटिव, राइट साइड 6 पॉजिटिव, सो 6 इलेक्ट्रॉन, 2 I नेगेटिव और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज 2 है, इधर 0 था इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन, और इनटू कर देंगे बेटा 3। तो ओवरऑल इक्वेशन क्या आ गई, Cr2O7 2 नेगेटिव 6 I नेगेटिव 14 H प्लस टू गिव 2 Cr3 plus plus 3 I2 and 7 H2O। That's it। तो ये होगी बैलेंस्ड इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की क्वाइट हाई होती है, आपको पता ही है। क्यों? क्योंकि बोलो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों हाई होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की? क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट इक्वेशन बैलेंस करो, MnO2 प्लस KOH, MnO2 प्लस KOH प्लस O2। तो ये इक्वेशन कब यूज होती है, जब हम पायरोलुसाइड और MnO2 क्या होता है, पायरोलुसाइड और से KMnO4 बनाने के प्रोसेस शुरू करते हैं। एट दैट टाइम ये
पहला रिएक्शन होता है जिसमें क्या क्या बनता है, K2MnO4 और साथ में H2O। MnO2 से K2MnO4 बनता है और साथ में H2O बनता है, ठीक है। और इसको बैलेंस कर लो, 2 K2MnO4 और 2 H2O, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई इसके लिए। और इक्वेशन है ओके, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सो एनायंस oxidizing power of oxo anions are in the order VO2 positive is less than Cr2O7 2 negative less than MnO4 negative। यस बेटा, तो इसमें क्या देखना है आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन, मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट। सो देखो VO2 नेगेटिव, VO2 पॉजिटिव में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम, इट इज +3। in Cr2O7 2 negative it is +6 or MnO4 negative it is +7। so as oxidation number increasing, oxidizing power increases। so you will write that as oxidation number of the central metal increases, oxidizing power increases, that's it। Lanthanum 3+ and lutetium 3+ do not show any color। Next question is lanthanum 3+ and lutetium 3+ do not show any color। तो ये एक्सप्लेन करना है आपको कि ये दोनों कोई कलर शो नहीं करते इन सोल्यूशन। सो व्हाई इज इट सो? सो बेटा लैंथेनम जो है 3+, इट इज xenon 4f0 5d0 7s0 and lutetium 3+, it is xenon 4f14 5d0 7s0। सो चाहे लैंथेनम हो चाहे लुटेशियम हो, दोनों 3+ में या तो वेकेंट एफ ऑर्बिटल है और या तो फुल्ली फिल्ड, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज नो एफ एफ ट्रांजिशन। मतलब इनमें कलर जो है किसकी वजह से होगा, ड्यू टू एफ एफ ट्रांजिशन। तो इन दोनों केस में देयर इज नो unpaired f electron, therefore no ff transition takes place and that's why they do not show any color in the solutions। okay, तो इतने ही क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्लास में हमें ये जो 4 चैप्टर हमने किए अभी तक,
उन 4 चैप्टर के जैसे प्रीवियस ईयर कर लेंगे, प्रीवियस ईयर तो इसके तो हो ही गए है ना, और जेई और नीट के क्वेश्चंस कर लेंगे इनसे रिलेटेड। ओके बेटा, ठीक है मैम, ओके। So that's all for the day. Thank you so much to all of you to be with me. और नेक्स्ट क्लास से हम इससे रिलेटेड डी एंड एफ ब्लॉक के जेई और नीट के क्वेश्चंस करेंगे। सेम टाइम ऑन मंडे 6 o'clock. Okay, that's all for the day. Thank you so